सुंदर तारक है, सुंदर तारक है, सुंदर तारक है, परम आनंद कारण है। यीशु मसीहा सा कोई प्रेमी नहीं, कोई नहीं ये हारे। यीशु मसीहा सा कोई प्रेमी नहीं, कोई नहीं ये हारे। सुंदर तारक है। शारोन की शोभा वो ही, शारोन की शोभा वो ही, लेबानोन की रौनक वो ही। उसने महान कृपा कैसे दिखा दिया, मुझ पर दिखा दिया रे। उसने महान कृपा कैसे दिखा दिया, मुझ पर दिखा दिया रे। सुंदर तारक है। कर्मेल की कीर्ति वो ही, कर्मेल की कीर्ति वो ही, मेरे प्राणों से प्यारा वो ही। मेरे सिर पर वो ही प्रेम पताका है, तूने जो फहराई है। मेरे सिर पर वो ही प्रेम पताका है, तूने जो फहराई है। सुंदर तारक है। We shall get our eyes blurred. हमारा आंख धुंधला हो जाएगा For some time that we won't be able to visualize anything. और कुछ समय तक हम स्वस्थ रीति से सब कुछ देख नहीं पाएंगे। When the solar eclipse is taken place, that it is generally warned the general public that nobody should look the sun directly while the eclipse is on the move. जब सूर्य पराग या सूर्य ग्रहण होता है, उस समय हमें ये चेतावनी दिया जाता है कि सूर्य को खाली आंखों में ऐसे उस समय नहीं देखना है। That time the high power radiation rays will be coming down from sun, and that will definitely lose the sight of the people if they looked directly onto the sun. क्योंकि उस समय सूर्य से प्रखर उस किरणें आता है जो हमारे आंखों का रोशनी को नष्ट कर देता है। Here the light which Saul had seen at Damascus was the light, according to his description, that it outshined the light of the midday sun, which literally lost his sight. साउल ने जो ज्योति को देखा और वो अपने अनुभव के अनुसार, अपने वर्णन के अनुसार दोपहर के सूर्य प्रकाश से भी और तेजोमय उस ज्योति को जब देखा, वास्तव में वो अपने आंखों को वो अंधा बना दिया। We read from this portion that he sat in the house of Simon the tanner for 3 days without sight and without taking any food. और बिन दृष्टि और बिन भोजन के 3 दिन तक वो सिमोन के घर में, उसके बाद वो पड़ा रहा। In my interpretation,
I understand in this way. That means the very sight of the Lord Jesus Christ lost him his own sight. और मैं इस प्रकार व्याख्यान करूंगा, इस प्रकार मैं इसे समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जब ने वो पाया, वो अपना खुद का दर्शन यानी दृष्टि को वो हरा दिया। Every Christian who believed the Lord Jesus Christ has seen the light itself, who claimed, I am the light of the world, whereas he or she has lost his own light, and the light replaced was the light of the world, which is the Lord Jesus Christ. एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, वो प्रभु को देखता है और वो खुद का रोशनी को हरा देता है, लेकिन प्रभु का ज्योति को वो प्राप्त करता है। It is in that light that a Christian has to move his footsteps. और उसी ज्योति में ही अपना पांव को वो आगे बढ़ाना है। See, Ananias came as the Lord commissioned him, and he saw him sitting down at that house without sight. Now he said, Brother Saul, rise up and get baptized and wash away your sins. And then he laid his hand upon him that he might receive the sight. So something like, something like crystal, that it fell down from his eyes, and then he regained his sight. और वहां पर हम देखते हैं कि हनानियस शाऊल के पास आकर खड़ा हुआ और उससे कहता है, भाई शाऊल फिर देखने लग। और उसी समय उसके नेत्र खुल गए और वो देखने पाया, और वो उससे कहते हैं कि उठ, जो तू उठा है बपतिस्मा ले। So since then, he became a mighty instrument in the hands of the Lord to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ to the Gentiles who would be added to the body of Christ. और उसी समय से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का एक बहुत बड़ा सेवक बना, ताकि वो अन्य जातियों के बीच में उस सुसमाचार को प्रचार करेगा और उन्हें उद्धार में लाएगा, जो भी प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के अंग बन जाएंगे। Regarding the vision that the Saul had seen, I want to make a special mention at this time that it was not one side, it was both side. मैं शाऊल के उद्धार के बारे में एक प्रकार कहूंगा कि एक ही दृष्टि को उसने नहीं हराया, दोनों दृष्टि को उसने हराया। The very time Saul had seen the vision as Ananias coming to him and laying his hand upon him, Ananias also had a vision that Saul was sitting at the house of Simon, and then he was going and then placing his hands upon him. Both of the end, the visions were there. और हम देखते हैं ये दोनों दर्शन दोनों तरफ हम देख सकते हैं। जब शाऊल उस दर्शन को पाता है, हनानियस भी उस दर्शन को प्राप्त करता है, जहां पर हनानियस देखता है कि वो शाऊल नामक एक व्यक्ति के ऊपर अपन हाथ रख रहा है। Today in the social media forum, very often we see some false Bible teachers claiming that they see some vision. I see somebody is coming through the front door of your house, and I see that the Lord is going to do some miracle in your life. It's something like that. They say very often. तो आज जो हमारे गण माध्यम में जो देखते हैं कि इस प्रकार पोस्ट भी लोग डालते हैं कि अभी कोई तुम्हारे घर आएगा जैसे कि प्रभु जैसे और तुम्हें आशीष देगा। Recently, I saw one pastor was saying a woman who came to the meeting that she was bound with so many strands, and the Holy Spirit was showing the pastor that all these strands were being loosened. और हाल ही में मैंने एक और पोस्ट देखा था जहां पर एक पेंटिकॉस्ट पास्टर वो कहता है कि कोई एक स्त्री
उनके वहां आते हैं और जिनके हाथ में बहुत कुछ बंधन था, और वो पेंटिकॉस्ट पास्टर उनके पास जाकर के कहते हैं कि तुम्हारा सारे बंधन खुल जाएं। The woman had no such vision. Only the pastor got the vision, and now pastor is making the woman to believe it. और उस समय स्त्री को इस प्रकार कोई दर्शन नहीं मिला था, सिर्फ पास्टर को ये दर्शन मिला था, और पास्टर उस बात को उस स्त्री के सामने रख रहे हैं। If the vision is coming from the Lord, that is both end, not one end. अगर कोई दर्शन हमें मिलता है तो ना सिर्फ हमें मिलेगा, उस व्यक्ति के, फलाना व्यक्ति के पास भी उस दर्शन प्रभु देगा। Today, there is no visions as such, unless so or so in those days, because preliminary dealings of the Almighty God to the people in a particular period of time to convey certain messages. शाऊल और हनानियस ने जिस प्रकार का दर्शन पाया उन दिनों में, आज उस प्रकार का दर्शन प्रभु किसी को नहीं देता है, क्योंकि उन दिनों में एक ऐसा समय था जहां प्रभु लोगों के साथ इस प्रकार बर्ताव करते थे। So don't expect for any visions in these days. इसीलिए किसी प्रकार का दर्शन। Few years ago, I went into Trivandrum and I had to stay in the house of the Pentecost Mission family. That means the Ceylon Pentecost Mission family. तो कुछ समय पहले मैं त्रिवांड्रम गया था, जहां पर एक परिवार के साथ मुझे रहना पड़ा, जो परिवार दी पेंटिकॉस्टल मिशन यानी सिलोन पेंटिकॉस्ट मिशन के अनुयायी है। The woman of the house was a devotee of the Ceylon Pentecost Mission doctrine, whereas her husband was not saturated to that much. और उस परिवार में जो बहन थी वो उस शिक्षा में, सिलोन पेंटिकॉस्ट चर्च के जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा रख दी थी, समर्पित कर थी, लेकिन उसके पति उस प्रकार नहीं था। Luckily, the husband and wife were living in 2 rooms. The woman in the ground floor and the husband on the upstairs, and nearby and the another room I was sleeping. तो ये सौभाग्यवशत ये है कि वो स्त्री घर के नीचे का फ्लोर जो है, वो नीचे का निचला महल में एक कमरा में रहती थी, और उसके पति ऊपर मंजिल में एक कोठरी में वो रहता था, और उसके बगल में मुझे भी एक कमरा दिया गया रहने के लिए। The Ceylon Pentecostal Mission has a very kind of doctrine that if a person is married, he should not have any physical alliance with either the husband or woman. That would make them unclean, so they have to separate and live, even if they are living in a home. और सिलोन पेंटिकॉस्ट मिशन के जो उपदेश है कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या स्त्री विवाह करने के बाद भी किसी व्यक्ति के साथ, यानी पुरुष के साथ, पति के साथ, वो पत्नी के साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रखना है, इसीलिए वे दोनों अलग रहते हैं। Morning, while we were sitting around the table for breakfast, the woman narrated me a story. और जब सुबह हम उठकर नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठे, उस स्त्री ने एक कहानी मुझे सुनाई। The previous night, somebody came to her room, a man with a white robe and a long beard, and placed his hands upon this woman, saying some spiritual visions. पिछले रात, वो बता रही थी, पिछले रात एक बहुत बड़ा पुरुष आया जो बहुत ही सफेद वस्त्र पहना हुआ था और लंबे सी दाढ़ी पकड़ा था, और वो आकर के अपना हाथ मेरे ऊपर रखा करके वो बोल रही थी। She wanted to convince me that the visions are still happening
and the Lord was speaking to her. But outrightly I told her, perhaps it might be one of the CPM pastor, senior pastor. तो इस दर्शन का बात सुनकर के मैं तुरंत उससे कहा, शायद ये जो दर्शन है तुम्हारा कोई सीपीएम पास्टर होगा। Usually our people, when they hear about such things, that they will not respond the way that I do it. मैं जिस प्रकार जवाब देता हूँ, शायद हमारे भाइयों में से कोई इस प्रकार जवाब नहीं देते हैं। But I go in rebuttal. मैं बहुत ही अलग रीति से चलता हूँ। Here is actually why I said this, that when God gives the vision, He gives both the end, not to one person only. मैं इसे कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रभु दर्शन देगा एक व्यक्ति के लिए, तो जिस व्यक्ति के लिए दे रहा है उसे भी देगा और जिसको उसके पास भेजना है उसे भी वो देगा। Now verses 20 to 31 is the third portion, third division of this chapter. Paul and the Jew. प्रेरित 9 अध्याय में अगर हम देखेंगे 32 से लेकर आखिरी तक, हम तीसरा भाग यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर two evidences of Paul's conversion is found here in this passage. और इस भाग में पौलुस के उद्धार का सही प्रमाण हम देख सकते हैं। Verse 11, he prayed. 11 आयत में हम देखते हैं वो उसने प्रार्थना किया। Verse 20, he preached. और 20 आयत में वो प्रचार करने लगा। Talking to God for men and to men for God are good proofs of conversion. और उद्धार पाया है करके जिसका जो प्रमाण है, लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना और प्रभु का बात लोगों को सुनाना, ये है बहुत अच्छा प्रमाण। Paul started where he was and preached what he knew, another good policy for new Christians to follow. पौलुस ने जो समझा था, जो जाना है, उसी को वो प्रचार किया और जहां वो खड़ा हुआ वहीं से प्रचार किया। हर एक विश्वासी को एक अच्छा नमूना वो प्रदान करता है। If some of you are coming to Christian faith from your village, it is your own village where you have to start witnessing for the Lord, not going into a remote place and then preach there. अगर आप कोई गांव से आते हैं, तो जिस गांव से आप आते हैं उसी गांव में ही आपका प्रचार का अनुभव यानी सुसमाचार प्रचार, आपकी गवाही देना वहीं शुरू करना आवश्यक है। First you preached the gospel to your own people at your house. और सबसे पहले अपने घर के लोगों Then को you सुसमाचार go सुनाना to the आवश्यक other है। places and bear witness. उसके बाद आप अलग जगहों में जाकर प्रभु का गवाही बन Today, on सकते the हैं। contrary, it is taking place. आज लेकिन उसका विपरीत में कार्य हो रहा है। Immediately after the conversion, going to America. और उद्धार पाने का तुरंत अमेरिका जाना, Then comes back and then start ministry. उसके बाद वहां से आके सुसमाचार प्रचार शुरू करना। Paul was really converted because he prayed and then he preached. पौलुस उद्धार इसीलिए पाया है और उसका प्रमाण हम देखते हैं। सबसे पहला वो प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद वो प्रचार करने लगता है। Most probably his conversion took place around AD 37. शायद ईस्वी 37 में उसने उद्धार पाया। He spent time in Damascus preaching and then went to Arabia according to Galatians chapter 1 verse 15 to 18. और वो दमिश्क में ही रहा, सुसमाचार प्रचार किया। उसके बाद अरबिया में चला गया, जैसे कि गलातियों के पत्री पहला अध्याय में दिया He गया। returned to Damascus
after many days, according to Acts chapter 9, verse 23. प्रेरितों के काम 9 के 23 वचन के अनुसार वो दमिश्क को बहुत दिन के बाद वापस आए। Most scholars, they agree to the point that from the day of the conversion of Paul to his the return to Damascus is nearly 3 years span. और वो अरबिया को जाकर के वहां से वापस जब दमिश्क को आता है, प्रभु के वचन के शिक्षकों का मानना ये है कि ये करीबन 3 साल बीत जाता है। Most probably during this interval time of 3 years in Arabia, God must have conveyed him the mystery of the truth of God's church. और जब वो अरबिया में था 3 साल तक, उसी समय प्रभु के लोगों का मानना ये है कि परमेश्वर अपने कलीसिया के जो भेद है उसे प्रकट किया। When back in Damascus, the Jewish people attacked him, and whereas he had to live through a window at night. और जब वो वापस आया दमिश्क में और प्रचार कर रहा था, वहां के यहूदी लोग उसे हमला करने के लिए जब आया, उसे एक घर के खिड़की से बाहर उतार के वहां से जाने दे दिया। This takes us to the period from AD 37 to 39. ये हमें ईस्वी 37 से 39 तक ले जाता है। Once he returned to Damascus, from thence he went to Jerusalem to meet the apostles of Jesus. दमिश्क से वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों से मिलने के लिए या प्रेरितों से मिलने के लिए यरूशलेम हो जाते हैं। The apostles were also afraid of the presence of Paul. और पौलुस को देखकर प्रभु के चेले लोग भी या प्रेरित लोग भी डर जाते हैं। When I meditate upon Paul's return to Damascus and then visitation to the apostles in Jerusalem and their immediate response, I am called on an incident took place some years back at Tiruvalla, my neighborhood place. तो जब मैंने देखा कि शाऊल या पौलुस दमिश्क को आते हैं और वहां से जब यरूशलेम आते हैं, इस घटना को मेरा इस प्रकार का यादगार हुआ कि मेरी जगह के पास में तिरुवल्ला नामक जगह है, वहां पर एक घटना हुआ था, उसी घटना मेरा याद है। There was a Marthoma family in Tiruvalla township. और वहां पर मर्थोमा क्रिश्चियन परिवार तिरुवल्ला टाउन में रहते थे। The family had 3 children, 2 boys and 1 girl. और उस परिवार में 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। The girl was showing some mentally retarded symptoms and signs in sometimes. और कभी-कभी वो बेटी जो थी, उसका दिमाग थोड़ा खराब होने का यानी पगलापन वो दिखाती थी। The parents thought of taking her to the church priest so that he should lay his hands upon the child and pray for that her fear may be done away from her. उसके पिताजी ये सोच रहे थे कि कलीसिया के उनके जो पादरी होते हैं, उनके पास जाकर के उसे दिखाएं ताकि वो उनके ऊपर हाथ रखे और वो बेटी ठीक हो जाए। When the girl was brought to the padri was terribly frightened, asking him, "Why you have brought her to here?" जब उस बेटी को पादरी के पास लेके गए, पादरी इतने डर गया कि और कहता है, इस बेटी को क्यों यहाँ पर लाए मेरे पास? And this was the same experience of the apostles when they met the Saul of Tarsus was standing in front of them in Jerusalem at his first visit. और प्रेरितों के सामने जब पौलुस खड़ा था उद्धार पाने के बाद पहला बार, और उनका अनुभव भी शायद इसी प्रकार का रहा होगा। So Barnabas took him to Apostle Peter and James and consoled him in the Lord Jesus Christ. और उस समय बरनबास नामक एक भाई ने वो
शाऊल को लेकर के और पतरस और याकूब के सामने पेश करते हैं। When this padri was frightened of seeing this mentally retarded girl, one Sharon pastor, that is Sharon Pentecost pastor, before him the girl was produced, and he laid his hands upon this girl, and she was healed. This is the same story what had happened when the apostles were frightened to see Apostle Paul. Barnabas took him to Apostle Peter, and he stayed with Peter for 15 days in Jerusalem, and then he saw James the apostle and none others. ये जो मार्थोमा पादरी के पास जब लेके गए, कुछ नहीं हुआ, वो डर गया था, लेकिन उसके बाद वे एक शारोन पेंटेकोस्ट पास्टर के पास लेके गए और वो उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने से वो ठीक हो गया। उसी रीति से यहाँ पर प्रेरितों ने पौलुस को देख करके डर गए, लेकिन बरनबास नामक एक प्रभु का दास पौलुस को अपने साथ लेकर उन्हें उनके सामने परिचय कराते हैं। However, he stayed with Peter for 15 days and introduced himself to the apostles, saying, the way that Christ had appeared to him at Damascus and made him the follower of Christianity instead of a persecutor of it. और वहां पतरस के पास वो 15 दिन करीबन रहते हैं और वहां वो उन्हें लेकर के बाकी भाइयों से परिचित करवाते हैं और कहते हैं कि प्रभु कैसे शाऊल को दर्शन दिया दमिश्क के फाटक पास और कैसे वो प्रभु का गवाही दे रहे हैं। Okay, the time is up now that we will stop it here today, and God willing that we will meet again on the next day on the same platform. आज के लिए हमारा समाप्त होता है, इसीलिए हम यहाँ रुकेंगे। प्रभु की इच्छा हो तो हम अगला बार फिर से मंगलवार को मिलेंगे। God bless you all. प्रभु आप सबों को आशीषित करे। थैंक यू सर। Thank you. Jennings, has he gone for football? प्रभु प्रभु का नाम की स्तुति हो। वे बड़ा धन्यवाद करता है टेट्सन को, अंशवाणी को और भाई रिकी बसन अच्छी तरह गाना गाया, उनको भी वे बड़ा धन्यवाद करता है। शिव भाई प्रार्थना में अगुवाई कीजिए, उनको भी वे बड़ा धन्यवाद करता है। अभी हम प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई गणेश अगस्टिन को अनुरोध करता है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई गणेश अगस्टिन। जी ब्रदर, प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरे निकटता में आते हैं देवन। प्यारे पिता, जैसा कि हम लोग प्रेरितों को पुस्तक से लगातार गौर करते आ रहे हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर की बहुत ऐसी बातों को छूने के लिए, समझने के लिए जो तू लगातार मौका दे रहा है प्रभु। पौलुस के जीवन में जो भी बातें हुआ प्रभु, बेहतर रीति से समझने के लिए प्यार परमेश्वर तो अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। तुझे धन्यवाद करते हैं देवन, तेरी दया प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे वचन की गहराई में तू चाहता है प्रभु कि हम सभी जाए और तेरे इस गूढ़ रहस्य को भी समझ सके। प्यार पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तूने ऐसा हम सभी के जीवन में मौका दिया। हाँ प्यार परमेश्वर, अपने दास और यहाँ उपस्थित तमाम प्रियजनों पर भी तेरा अनुग्रह से सो प्रभु, और भी लोग तेरे इस वचन के आनंद उठाने के लिए प्रभु जी, और भी लोग जुड़ने पाए इसके लिए भी तेरी ओर ताकते हैं प्रभु। सबको तेरे हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर, जो ऐसा सुंदर संगति और सुंदर स्टडी करने के लिए
सीखने के लिए जो तूने हम सभी को जो मौका दिया प्रभु, दास को इस्तेमाल किया पिता, तेरी महिमा हो। यीशु प्रभु के नाम में